Namaskar. My name is Rajesh, and today I am going to discuss you about Bodh religion. Buddhism. Actually, before I start discussing about this topic, I want to discuss you something about history. Some people, some students have a natural interest in history subject, while some students don't find it relevant or interesting. But I think if you are preparing for any competitive exam that is based on general study, you will have to go through the history subject. Without history knowledge, you can't crack this exam. First thing. Second thing, language. Since I'm making this video in mostly English medium because many of my students suggested me to make a video in English medium. But I find that a lot of the students, in other words, I can say that maximum students are of Hindi medium. So no doubt I am making this video in English medium, but you can understand Hindi also. So whenever I speak Hindi, I am sure that you will be able to understand that in Hindi also. For history, questions are of three types. First types, history questions are of three types. First types, that is PYQ. Second, new question, and third one is absurd question. PYQ ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पिछली बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। न्यू क्वेश्चन जो पहले तो नहीं पूछे जा गए हैं लेकिन अभी पूछे गए हैं और वो रेलिवेंट है, संभव है कि आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एब्सर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे कोई रेलिवेंसी नहीं होती है, वो कहीं से किसी तरह के डेटा पूछे जाते हैं और इस बात की भी संभावना होती है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं होंगे, फिर कभी नहीं पूछे जाएंगे। हमारी तैयारी इन दो तरह के क्वेश्चंस के लिए होती है, पीवाईक्यू जो पहले पूछे जा चुके हैं, न्यू क्वेश्चंस। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई हिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट? फर्स्ट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू। फर्स्ट जो रीजन है, फर्स्ट रीजन है हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट होने का कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री का नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरल नॉलेज या जीएस पर डिपेंडेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री से बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड, मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल होता है। Since the maximum questions are factual, so it is easy to solve these questions. So the students must read history subjects to crack any exam. Now come to the point. Today topic is Buddhism or Bodha. First, we try to know what were the reasons behind the emergence of these terms. ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 6th century BC इंडिया में क्या क्या चेंजेज आए थे? फर्स्ट चेंजेज वाज सोशल टेंशन। Social tension has society were divided into two class, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudraj.
एंड यह जो विभाजन था लेटर वैदिक पीरियड में यह जन्म पर आधारित हो चुका था। इन लेटर वैदिक पीरियड यह जो विभाजन था, जो वर्ग का विभाजन था, यह जन्म पर आधारित हो गया था, जिसमें से फर्स्ट थ्री ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य were known as द्विज। द्विज का अर्थ होता है ऐसे वर्ग जिन्हें वेद पढ़ने का और सुनने का अधिकार था और साथ में सेक्रेट थ्रेड जिसे जनेऊ कहा जाता है वो पढ़ने का अधिकार था। ये तीन वर्ग ऐसे थे। शूद्र ये तीनों वर्गों की सेवाएं करते थे, इसलिए सबसे नीचे वर्ग थे। ब्राह्मण को समाज में सबसे ऊंचा वर्ग था। यह टैक्स से और पनिशमेंट से फ्री क्लास था। दिस brahmanas were free from taxes and punishment. Kshatriya was not favoring brahmanas for this liberty, because Kshatriya was against the priestly class, and so in the beginning Kshatriya happened to oppose brahmanas, and so the main two religions, that is Jain and Bauddha, the propounder of these two religions were Kshatriya. Second, this one is third. This one is first. Second, regions. दूसरा रीजन जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धर्म का उदय हुआ या रिलीजियस मूवमेंट हुआ, एक तो वर्ल्ड क्लास टेंशन था, दूसरा था सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन। सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन इससे क्या हुआ था? सेकेंड फेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब कई बड़े शहर बने थे। कौशाम्बी, वैशाली, चंपा, चिरांद, ऐसे कई शहर बने थे और इन शहरों से वैश्यों की स्थिति मजबूत हुई थी। Coins come into existence in this period, and the first coins were known as punch mark coins, that is 5th century BC। इससे वैश्यों की स्थिति मजबूत हुई थी और वैश्य भी चाह रहे थे, कुछ रिलीजियस सपोर्ट चाह रहे थे, और उनके जो समस्या थी वैश्यों को जो चाह रहे थे कि वो भी ब्राह्मणों के जो एक अधिकार जो उनको मिल रहा था उससे वैश्य लोग भी बड़े खुश नहीं थे और चाह रहे थे कि कोई उन्हें रिलीजियस सपोर्ट दे। तो जब जैन धर्म और वैद्य धर्म का उदय हुआ तो वैश्यों ने उन्हें बहुत पैट्रोनाइज किया, जिससे उन्हें फलने फूलने में बहुत मदद मिली। थर्ड फैक्टर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आयरन का यूज शुरू हुआ था। इससे पहले हम जानते हैं कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज हो रहा था। दिस एरा इज नोन एज द इमर्जेंस ऑफ आयरन। आयरन का यूज हुआ था। आयरन से हुआ था कि आयरन प्लाउशियर, मतलब लोहे के हल से खेती शुरुआत हुई थी। लोहे के हल से खेती के लिए बुलक चाहिए था, बैल चाहिए था, लेकिन जो प्राचीन जो वैदिक रिचुअल्स था जिसके समय इसका डेसिमेशन हो रहा था, एंड डेसिमेशंस were happening due to Vedic sacrifices of the cattle and second thing,
जो गैंगेटिक प्लेन था उसके जो इर्द गिर्द जो ट्राइब रह रहे थे वे लोग गाय को और बैल को मारते थे खाने के लिए, वे इनका मीट खाते थे। इन दोनों वजहों से इसकी मवेशी की कमी हो गई थी, जबकि जो उस समय जो जो जगह था उसमें बचने के लिए या एग्रीगेशन के लिए बैल की आवश्यकता थी खेती करने के लिए। तो जो नया धर्म जो आया था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया था, नॉन वायलेंस को प्रमोट किया था, जिससे भी इसे आम लोगों द्वारा सपोर्ट मिला, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इनकी रक्षा हो सके, ये जो डोमेस्टिकेशन हो सके, इनका डोमेस्टिकेशन हो सके बुलॉक का या काऊ का, इससे यह बेनिफिट हुआ। ये मुख्य रूप से 3 रीजन था जिसके वजह से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धर्म का उदय हुआ। और जो कुल मिला के जितने जो जो उस समय जो सेक्ट थे, approx 62 religious sects were emerged at that time. 62 religious sects were emerged at that time. Among 62 religious sects, Baudd and Jain were the most important ones. अब हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। रफली यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया है और नेपाल, हम इसको देखते हैं। फिलहाल मैप के खूबसूरती पर ध्यान न देके इसके इंडिकेटिव पर ध्यान दें। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल में, ज्ञान प्राप्ति हुई गया में, प्रथम धर्म उपदेश दिया यूपी में और मृत्यु भी हुई यूपी में। हम इतना समझते हैं। जन्म हुआ, समस्या होती है जब हम इसे पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होता है, जो भी फैक्ट्स है इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको याद करना काफी मुश्किल होती है। तो पहले हम गौतम बुद्ध को, जीवनी को हम थोड़ा एक समझते हैं। लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। इनका नाम था सिद्धार्थ। His name was Siddharth. Buddha, Gautam. Father's name Sudhodan. Mother's name Mahamaya. Aunt's name प्रजापति गौतमी। and son Rahul. wife Yashodhara। अब हम थोड़ी इनके लाइफ के विषय में बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में, जो वर्तमान में नेपाल में है, वहाँ के लुम्बिनी वन में हुआ था। वहाँ के राजा सुधोधन के यहाँ, जो कपिलवस्तु के राजा थे, इलेक्टेड लीडर थे वहाँ के, उनके परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। जन्म के समय इनके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा या कोई साधु होगा, कोई संत होगा।
कोई पिता यह जान करके अपने पुत्र को कि वह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या साधु होगा, वो यही चाहेगा कि मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने, ना कि साधु बने। इसके लिए उन्होंने हर सीजन के लिए अपने बेटे के लिए अलग अलग प्रबंध किया, ताकि उसमें भोग विलास में वह रत रहे, ताकि उसका साधुत्व की तरफ उसका ध्यान न जाए। कम ही आयु में, 16 वर्ष की आयु में, बहुत ही खूबसूरत कन्या से जिसका नाम यशोधरा था, उनकी शादी हो गई। लेकिन मैरिड लाइफ डिड नॉट इंटरेस्ट, और गौतम बुद्ध फिर भी शादी हो गई, शादी 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। शादी के बाद कुछ समय उन्होंने गृहस्थ जीवन का आनंद उठाया। इसी दौरान उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम राहुल रखा। दरअसल राहुल नाम रखने के पीछे एक रीजन है कि जैसे राहुल का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध राहुल राहुल कर करके एक चिल्लाने लगे, और मतलब इस तरह से उनको आभास हुआ कि राहुल का मतलब बंधन भी होता है, जो एक उनके जो उनका लक्ष्य था जीवन का, उस लक्ष्य में एक बंधन और आ गया, इसलिए राहुल नाम उसका पड़ा। फिर ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक समय इन्होंने 4 चीजों को देखा, चार घटनाओं को देखा, और ये 4 घटनाएं इनके जीवन को बदल दी। जिसमें से प्रथम घटना थी, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार को देखा, फिर एक कॉर्प्स देखा, कॉर्प्स में से लाश को देखा, उसके बाद फिर घुमक्कड़ साधुओं के एक ग्रुप को देखा। ये 4 सॉरी, इन चारों घटनाओं ने उनके जीवन को बदल दिया, और 29 साल की उम्र में वो पत्नी और अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके घर से निकल गए थे। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। मैथिली शृंगगुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शृंगगुप्त ने इस घटना पर बहुत खूबसूरत कविता लिखी है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, लेकिन काश वो मुझसे कहकर जाते, और वो जो मुझसे नहीं कहकर गए यही बड़ा व्याघात। तो सखी वे मुझसे कहकर गाते, इस बात को उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन खैर उसकी आवश्यकता यहाँ है नहीं। अब समझना है कि गौतम बुद्ध घर छोड़ करके गए तो कहाँ गए। जब वो घर छोड़ के गए तो वैशाली आए। वैशाली में उन्हें अलार कलाम से मुलाकात हुई। अलार कलाम ने सांख्य की शिक्षा दी। फिर वहां से राजगीर गए। राजगीर में उद्दक रामपुत्र मिले, उनसे उन्होंने योग की शिक्षा ली। फिर कौंडिन, अब्बा जैसे 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर के उन्होंने तपस्या की शुरुआत की। कई दिनों तक तपस्या करने के बाद लगभग वो कंकाल हो चुके थे, लग रहा था कि मरणासन स्थिति में हो जाएंगे। फिर उन्होंने उन साधुओं का साथ छोड़ दिया, और साथ छोड़ करके गया पहुंच गए। गया पहुंच करके निरंजना नदी के किनारे उन्होंने तपस्या की शुरुआत की। तपस्या 7 सप्ताह तक तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में उन्हें इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह एक सीधा साधा हिसाब है जो याद करना भी मुश्किल होती है। नेम सिद्धार्थ है, गोत्र गौतम, सुदोधन, महामाया, प्रजापति। ये प्रजापति नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनकी जन्म के 1 सप्ताह बाद ही उनकी माँ महामाया का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही की थी, इसलिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उनका तो अब 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम 35 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया, इमेंसिपेशन किया, लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। इसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया, जिस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। और 35 साल की उम्र में इनलाइटेनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में, जिसको भी बोध गया कहा जाता है, वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब कि 29 साल की उम्र से उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की प्रारंभ की, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी शुरुआत की, और 7 साल बाद जाकर के उन्हें रिजल्ट मिला। मतलब 35 साल की उम्र में उन्हें फाइनल सिलेक्शन हुआ, और 7 साल तक उन्होंने कठिन मेहनत किया, तब जाकर के 35 साल की उम्र में उन्हें फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो इसे हम ऐसे लिखे 16 7 29 35 80। इतिहास में हमने पहले ही चर्चा की है कि फैक्ट्स को याद करना बहुत मुश्किल होती है।
हम बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। अपना अपना कुछ टिक बनाना चाहिए, जिस टिक के आधार पर हम इसको याद रख सके। यह टेलर जिस टाइप से लिखता है, टेलर जब जैसे कमर का नाप लेता है, शोल्डर का नाप लेता है या वेस्ट का नाप लेता है, तो वह एक अंक लिख देता है, लेकिन वह डिजिट सिर्फ टेलर ही समझ सकता है, क्योंकि उसको यह आइडिया है कि शोल्डर वो लिखा है, अंक लिखा है तो क्या लिखा है, वो शोल्डर का नाप है, वेस्ट का नाप है, चेस्ट का नाप है, क्या है, इसकी आइडिया होती है। ठीक इसी तरह से हमने 16, 7, 29, 35, 80 अगर हम लिखते हैं तो इसको हम मानेंगे 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, मैरिज, 7 साल तक उन्होंने वानरिंग मतलब भ्रमण किया, 7 साल तक वानरर्स, 29 साल की उम्र में महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण, 35 साल की उम्र में इनलाइटनमेंट मिला उनको, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। 16, 7, 29, 35, 80, 16, 7, 29, 35, 80, 16 साल की उम्र में मैरिज, 7 साल तक घूमते रहे, 29 साल की उम्र में महाभिनिष्क्रमण, गृह त्यागना, 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति, 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं जन्म कब और कहां हुआ था, कुछ और फैक्ट है जिसकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। बर्थ कपिलवस्तु 563 बीसी में, ये जन्म है उनका 563 बीसी कपिलवस्तु में, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन, और डेथ है कुशीनारा, कुशीनारा, ये है 80 साल जीवित रहे, तो इसमें से 80 माइनस कर देंगे, 483 बीसी में। ये कुशीनारा है, मल्ल की राजधानी, कैपिटल ऑफ मल्ल, प्रेजेंटली सिचुएटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश। अब जन्म के मृत्यु के समय कहानी है कि मृत्यु के समय इन्हें इनका जो एक डिसिपल था, बड़ा एक सीधा साधा डिसिपल था, जो इन्हें सुअर का मांस, पोर्क खिलाया, और पोर्क खिलाया, चुंद नामक एक लोहार था जो इन्हें पोर्क खिलाया, और जिससे इन्हें डिसेंट्री हो गई, और उसी डिसेंट्री की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर आनंद, जो इनका प्रिय शिष्य था, वो बड़ा निराश हुआ और बड़ा निराशा जाहिर किया कि हमारे शास्त्र यानी हमारे गुरु का जो निधन है, वो उस समय के बड़े बड़े जो शहर थे, जैसे चंपा, कौशाम्बी, वैशाली, ऐसे शहरों में नहीं हुआ, श्रावस्ती, ऐसे शहरों में नहीं हुआ, और कुशीनारा जैसे छोटे शहर में उनका निधन हुआ। खैर, अब हम इसके बाद फिर कुछ और चीजें, कुछ और फैक्ट है, जैसे इनका सिंबल है, बौद्ध धर्म में सिंबल का महत्व, कुछ सिंबल है जिसे कि आप पूछा जाता है करके प्रश्न, जैसे जन्म से संबंधित सिंबल है, इसको हम बर्थ लिखे, बर्थ का सिंबल है लोटस, कमल, महाभिनिष्क्रमण, मतलब गृह त्याग का सिंबल है हॉर्स, घोड़ा, डेथ, इसका सिंबल है स्तूप। इस तरह से सिंबल है जिसे हमें याद करना है। और अब जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब हम इनके जीवन से चलते हैं थोड़ा सा आगे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, when the age 35, at the age of 35 he got enlightenment in Buddha। ज्ञान की प्राप्ति, क्या ज्ञान था, क्या इनके सामने प्रश्न था कि मनुष्य इतना का जीवन है क्या, मनुष्य इतना परेशान क्यों होता है, जिन समस्याओं से मनुष्य पूरी जिंदगी जूझते रहता है, उसका समाधान क्या है। वस्तुतः ज्ञान यही था, इसी ज्ञान के लिए परेशान थे, पूरी जिंदगी परेशान थी, और अंततः उन्हें ज्ञान मिला बोध गया में। ज्ञान मिलने के बाद फिर वो बड़ा निर्णय इंडिसीजन की स्थिति में थे कि करे क्या। अब तो ज्ञान के लिए बड़ा शांत महसूस करते, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। तो शक्र कहा जाता है, ये जो हिंदू धर्म में इंद्र है,
उन्हीं को बौद्ध धर्म में शक्र कहा गया है। शक्र आदि देवता आकर के भगवान को समझाए, गौतम बुद्ध को समझाए कि आपको बहुत बड़ी चीज प्राप्त हुई है, आप जाइए और दुनिया को इस चीज को बताइए। अब जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति भी बोध गया, ज्ञान प्राप्ति भी बोध गया। अब जरा समझने की बात है, बोध गया में से भी ये उपदेश दे सकते थे, लोगों को समझा सकते थे कि देखो हमें कुछ प्राप्त हुई है, तुम लोग सुनो समझो, मेरी बात को मानो, मेरा फॉलोअर बनो। लेकिन बोध गया से इन्हें ज्ञान तब तक ज्ञाता नहीं माना जा सकता था जब तक इनको ज्ञाता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे आज के समय में सर्टिफिकेट को यूनिवर्सिटी देती है, यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेकर के हम मानते हैं कि हमें जिस क्लास की सर्टिफिकेट मिल गई उस क्लास के लिए हमें ज्ञान हो गया है। कई आयोग बने हुए हैं इंडिया में, यूपीएससी बीपीएससी, जो हमें रिकॉग्नाइज करती है कि हमने यूपीएससी क्रैक कर दिया, इसका मतलब हम काफी ज्ञानी हो चुके हैं। यूपीएससी क्रैक करने वाला आदमी हम मानता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। बहुत सारे टीचर भी है बताते रहते कि हम तो यूपीएससी का इंटरव्यू 3 बार दिए हैं इसलिए हम बहुत ज्ञानी है। कोई ऐसा भी बताते कि हम तो यूपीएससी फाइनल कर चुके हैं इसलिए हम बहुत ज्ञान मेरे पास है। तो इस तरह से मतलब ये मान के चलते हैं कि फलाना कॉम्पिटिशन हम कर चुके हैं या फलाना ये आयोग से कमीशन से मुझे रिकॉग्निशन मिल चुका है, यानी कि हमारे पास ज्ञान हमारे पास कोई लिमिटेशन ही नहीं है, अनलिमिटेड ज्ञान है। तो उस जमाने में इस तरह का कोई आयोग नहीं था, इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन था क्या, तो उस समय में जो ज्ञानी माने जाते थे वो ब्राह्मण माने जाते थे। तो अब वो ब्राह्मणों से उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए था जो उन्हें सर्टिफाई करते, यस यू आर एन एनलाइटेड पर्सन नाउ। तो बोध गया से वो वाराणसी गए, बनारस, उस समय उसका नाम बनारस था या काशी था, वहां गए और वहां ईशीपत्तन या ईशीपत्तन मृगदाव में वह कौंडिन आदि ब्राह्मण जो उन्हें मिले थे, जिन ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की शुरुआत की थी और जो इनके तपस्वी जीवन छोड़ देने के कारण इन्हें पथभ्रष्ट कर करके चले गए थे, पहले जाकर के उन ब्राह्मणों को समझाया कि देखो हमने कुछ अद्भुत चीज हासिल कर लिया है, अब इसको तुम सुनो और समझो इसको। उन ब्राह्मणों ने सुनने के बाद इन्हें रिकॉग्नाइज किया कि नहीं तुम तो वास्तव में कुछ खास बन चुके हो। वहां से रिकॉग्निशन जब मिला, सारनाथ से रिकॉग्निशन था, तब ये घूम घूम करके he had started preaching in India, in all over in India, and he was physically very fit. So per day he used to walk 30 to 40 kilometers a day, except Varsavas. Varsavas कहा जाता है बौद्ध धर्म में। उस जमाने में कोई व्हीकल आज की तरह कोई गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं थी, तो पैदल ही घूम करके प्रचार करते थे। वर्षावास 4 महीने का वर्षावास होता था, 4 months वर्षावास, जिसमें ये कहीं एक जगह रुक करके उस वर्षा का जो सीजन होता था उसको गुजर जाने देते थे और फिर उसके बाद अपने धर्म का प्रचार करते थे। इस 4 महीने के सीजन को वर्षावास कहा गया है, वर्षावास। बौद्ध धर्म से वर्षावास का है। गौतम बुद्ध सबसे अधिक वर्षावास किए कौशल में, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल सबसे अधिक 21 वर्षावास, 21 वर्षावास इन्होंने किया कौशल में, और वैशाली में लास्ट वर्षावास था इनका, वैशाली में लास्ट वर्षावास था। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। लास्ट वर्षावास इन वैशाली, हिज लास्ट वर्षावास वाज इन वैशाली। कौशल में 21। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में किया था, कौशल या श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में दिया था सबसे अधिक उपदेश। उनके जो फॉलोअर बने उनमें डाको अंगुलीमाल, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, ये सब उनके फॉलोअर बने थे। इसके बाद इस तरह से उन्होंने धर्म का प्रचार किया घूम घूम करके, और 40 साल तक, अब पूरे 40 साल, क्योंकि 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 40 इयर्स तक, 40 साल तक घूम घूम करके उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, 40 साल तक प्रचार किया था, और 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से 40 साल की उम्र में पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से इन्हीं दो इलाके में प्रचार किया जहां तक वो घूम सके।
इसमें कई राजाओं का या कई व्यापारियों का उन्हें समर्थन मिला, जिससे उनके धर्म प्रचार में काफी सुविधा हुई। अब हम आते हैं टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। ये हुआ रफली अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। एक और है कि गौतम बुद्ध वाज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। एक अंग्रेज लेखक है अर्नल, उन्होंने ये नाम दिया था द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध वाज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज, हिंदी में इसे कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज। अब टीचिंग्स पर आते हैं। गौतम बुद्ध के मुख्य टीचिंग्स क्या थी? गौतम बुद्ध के टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। सबसे पहली बात जो इनकी जो टीचिंग थी, सबसे इंपॉर्टेंट पहला टीचिंग है 4 आर्षद, या इसको कहते हैं 4 नोबल पाथ, 4 नोबल ट्रूथ, नॉट पाथ, 4 नोबल ट्रूथ। इसे हिंदी में कहते हैं 4 आर्य सत्य। पाली में इसका नाम है चत्तारी और ये सच्चानी। इसका नाम अर्ये का अर्थ होता है, मैंने इसलिए यहाँ पाली में लिखा था, अर्ये का अर्थ होता है पाली में दैट कैन नॉट बी चेंज, जो नोबल भी हो और अनचेंजेबल भी, इसलिए इसका नाम अर्ये रखा गया। चत्तारी, अर्ये, सच्चानी। पाली भाषा इसलिए कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उस समय की जनसाधारण की भाषा थी पाली, जो इलीट क्लास की भाषा थी संस्कृत, उसमें उन्होंने उपदेश नहीं दिया था, उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली में उपदेश दिया था। और इसलिए उनकी जो किताबें हैं, जब हम पढ़ेंगे, उनकी 3 किताबें हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, जिसमें उन्होंने उपदेश दिया था। तो पहले हम लोग टीचिंग्स की बात करें तो टीचिंग्स कर दे। जो 4 आर्षद है, जिसमें से पहला है दुख, फर्स्ट आर्षद जिसे दुख कहा भगवान ने। दुख मतलब सभ्य दुख, हम सभी जगह सिर्फ दुख ही दुख है। दुख क्या है? हम जो कुछ पाना चाहते हैं हम नहीं पाते हैं, दुख होता है। हम एग्जाम में पास होना चाहते हैं, पास नहीं करते हैं, दुख होता है। हम किसी से मिलना चाहते हैं जो मेरा प्रिय है, हम नहीं मिल पाते, दुख होता है। जिससे नहीं मिलना चाहते हैं, जो अप्रिय है, अप्रिय से मिलन दुख है। पैसा कमाना दुख है, पैसा खर्च करना दुख है। मतलब भगवान ने कहा कि ये पूरा संसार ही दुखों से भरा हुआ है। सो दिस इज फर्स्ट नोबल ट्रूथ। सेकेंड वन, दुख समुदाय। दुख समुदाय, इस दुख समुदाय का अर्थ क्या है कि अगर दुख है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है, जिसे कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। कार्य कारण का सिद्धांत या डिपेंडेंट ओरिजिन, नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट ओरिजिन। डिपेंडेंट ओरिजिन का अर्थ हुआ कि एक घटना दूसरी चीज पर आश्रित है। दुख समुदाय है, मतलब इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें, दुख है दुनिया में, लेकिन ये पेसिमिस्टिक फिलोसफर नहीं थे। दुख है लेकिन उसका समुदाय है, उसका रीजन है, जिसे कार्य कारण सिद्धांत के द्वारा समझाया गया, जिसे हम रिलेटिव थ्योरी भी कहते हैं। रिलेटिव थ्योरी, लेकिन यह रिलेटिव थ्योरी फिलोसफी का रिलेटिव थ्योरी है, ना कि साइंस का। जैसे आइंस्टीन ने दिया था रिलेटिव थ्योरी, सापेक्षता का सिद्धांत, उससे इसे नहीं मैच करेंगे। यह रिलेटिव थ्योरी फिलोसफी का रिलेटिव थ्योरी है, मतलब यह सापेक्षता का सिद्धांत है कि एक घटना, कोई घटना होती है दुनिया में या कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई भी चीज बिना रीजन का नहीं होता है। यह दुख समुदाय है। थर्ड है
दुख समुदाय निरोध, दुख समुदाय निरोध। दुख समुदाय है मतलब कुछ ना कुछ कारण है इसका, तो उस कारण का को यदि हम निवारण कर देते हैं, उस कारण को हटा देते हैं, तो वह दुख निरोध हो जाता है। अब इसमें पटीक समुत्पाद का अनुलोम में, पटीक समुत्पाद यहीं पर हम चर्चा करते हैं। पटीक समुत्पाद, पटीक समुत्पाद, पटीक समुत्पाद का 12 जो होता है, पहला होता है पहला होता है अविद्या, फिर संखार, इस तरह से 12 कड़ियां हैं। लास्ट में अविद्या, अविद्या और लास्ट में होता है जाति। इस तरह से 12 है, अविद्या, संखार, अनुलोम में 12 है। अविद्या से संखार होता है, संखार से सदायतन होता है। इस तरह से 12 कड़ियों में इसे विभाजित किया गया है। एक से दूसरे का, एक से दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा होता है। इस तरह से मनुष्य जात दुख और जन्म और मरण के चक्र में यह घूमते रहता है। और अगर हम इसको एक एक करके खत्म करते चले, अविद्या को नाश कर दे, या जितना भी तन्हा डिजायर है, उस डिजायर को हम खत्म करते चले, इस सारे दुख का जो कारण है वो डिजायर है, और डिजायर को यदि हम खत्म करें तो यह दुख खत्म हो सकता है। लेकिन अब उस डिजायर को हम खत्म कैसे करेंगे, ये चौथा और ये सप्तम मैंने बताया, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यह चौथा आर्य सत्य है जिसमें भगवान ने बताया कि यह दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यह मार्ग है, इस मार्ग को फॉलो करके हम तन्हा जैसी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, मतलब डिजायर को हम खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर जो डिजायर है उसको हम खत्म कर सकते हैं, और जब डिजायर खत्म हो जाएगा तो हमें दुख से मुक्ति मिल जाएगी। अब यह अर्यो अट्ठांगिको मगो क्या है? अर्यो की चर्चा हमने पहले कर की है। व्हाट इज अर्यो? अर्यो अट्ठांगिको मगो, अर्यो अट्ठांगिको मगो। ये 8 मार्ग है, जिसमें से इसके हिंदी में ही याद करना ज्यादा आसान है, जिसे है सम्मा दिट्ठी, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा संकल्प, सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, लास्ट में है सम्मा सति, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये पाली भाषा में है सम्मा समाधि, राइट, सम्मा समाधि, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, इस तरह करके 8 है। इस 8 पर हम 8 तरह के व्यायाम है, इस व्यायाम के अनुसार हम व्यायाम पर चल के हम दुख समुदाय निरोध को खत्म कर सकते हैं, और दुख समुदाय निरोध जब खत्म हो जाता है तो हमें दुख से मुक्ति मिल जाती है। यह भगवान का उपदेश था। अर्यो अट्ठांगिको मगो। भगवान ने फिर, और गौतम बुद्ध ने एक इनका फिलॉसफी है मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है, इन्होंने कहा कि ना ही, जैसे एक उदाहरण से उन्होंने समझाया कि वीणा के तार को ना ही इतना खींचा जाए कि वो टूट जाए, इतना भी ढीला नहीं छोड़ दिया जाए कि उसे संगीत ही नहीं है। इस तरह से मध्यम मार्ग का अर्थ था कि काया कलेश करके बहुत ज्यादा तपस्वी जीवन जीने और साथ में बिल्कुल भोग विलास रहने, तपस्वी जीवन और भोग विलास, दोनों के बीच का उन्होंने मार्ग निकाला, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा कि ना ही बहुत ज्यादा काया कलेश करना है, बहुत ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता है, और ना भोग विलास करना है। मध्यम मार्ग का एक दूसरा अर्थ यह भी है शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। शाश्वतवाद, उच्छेदवाद। शाश्वतवाद का अर्थ है
कि सभी चीजें शाश्वत है, मतलब वो ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीज जैसे आत्मा शाश्वत बात का वो में है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, ईश्वर, ये सभी शाश्वत बात के अंदर करता है। उच्छेदवाद का अर्थ है कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। गौतम बुद्ध ने इन दोनों के बीच की बात कही। यहाँ भी उन्होंने कहा कि ना कुछ शाश्वतवाद है और ना ही बिल्कुल उच्छेदवाद है, ना पूरी तरह शाश्वतवाद है, इसी तरह ना ही उच्छेदवाद है। जब हम शाश्वतवाद और उच्छेदवाद को समझ जाएंगे तब हम यह समझेंगे कि आखिर गौतम बुद्ध ने आत्मा में विश्वास क्यों नहीं किया। गौतम बुद्ध, जबकि हम मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी चीज होती है, जबकि आत्मा को माने बिना उन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया। rebirth happens, but there is nothing like permanent thing that is known as आत्मा। इन्होंने आत्मा में विश्वास न करते हुए, चूंकि शाश्वतवाद में ये विश्वास नहीं करते थे, अगर ये आत्मा में विश्वास करते तो इनका जो सिद्धांत मध्यम मार्ग वह फुलफिल नहीं होता, वो जस्टिफाई नहीं होता, इसलिए भी इन्होंने आत्मा में विश्वास नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कई ऐसे प्रश्न हुए जैसे जिसमें से ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है नहीं है, ऐसे प्रश्नों को उन्होंने कह दिया कि ऐसे प्रश्न जिसका इट्स नॉट पॉसिबल to find, it's not possible to find its concrete answer. It's not possible to find its concrete answer. That's why he ignored these types of questions. और उन्होंने ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न कहा। यह टीचिंग्स हो गए बौद्ध धर्म की, मुख्य रूप से यह टीचिंग्स है। टीचिंग्स में हमने पढ़ा अर्जुन अठ्ठनी को मग्नो क्या होता है। इसके अलावा जीवों का उद्देश्य क्या है, निर्वाण। एक टीचिंग का एक और वो इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया, निर्वाण। निर्वाण, निह जोड़वाण, इसका विच्छेद होता है निह जोड़वाण, मतलब कि सारे बंधनों से मुक्ति। इसका अर्थ होता है सारे बंधनों से मुक्ति। इसको हम निर्वाण कहा, भगवान ने इसे निर्वाण कहा। और यह निर्वाण प्राप्ति ही जीवों का लक्ष्य होता है और होना चाहिए। यह भगवान के उद्देश्य का, गौतम बुद्ध के उद्देश्य का सार था कि टू अचीव इन निर्वाण इज द गोल ऑफ द कॉमन मैन। Now I am discussing about the meetings of the Gautam Buddha. First, बुद्ध की मृत्यु के समय, बुद्ध की मृत्यु 413 ईस्वी में हुई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 संगीतियां हुई हैं। इन चारों संगीतियों में पहला है बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद। बहुत जो मुश्किल होता है याद रखना इसमें, संगीतियां कब हुई, इसके कौन अध्यक्ष थे, कौन शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई थी और कहां पर हुई थी, फिर इसके आउटकम क्या थे। सबसे पहले हम इसका तिथि याद रखें। फर्स्ट हुआ था 300 बट बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद, मतलब 483 बीसी में ये पहली संगीति हुई थी। सेकेंड हुई थी 100 साल बाद 383 बीसी में। थर्ड हुई थी 250 बीसी में ड्यूरिंग अशोक। एंड फोर्थ हुई थी 1st सेंचुरी एडी यानी 90 एडी में कनिष्क के समय। अब ये तो हो गया कब कब ये मीटिंग हुई थी।
अब है किस कहां पर हुई थी? फर्स्ट हुई थी राजगीर में, सेकेंड हुई थी वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, कश्मीर कुंडलवन, कश्मीर में। अब राजा कौन कौन था? फर्स्ट जो हुआ था तो इस समय राजा था अजातशत्रु, अजातशत्रु, कालाशोक, जब वैशाली में हुआ था तो कालाशोक, थर्ड के समय अशोक एंड कनिष्क, कनिष्क। Who was the president? First था महाकश्यप, महाकश्यप, सेकेंड सवाकामी, थर्ड मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, fourth one was preceded by वसुमित्र एंड वाइस प्रेसिडेंट था इसका अशोक घोष। इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में पूछा जाता है। 4 संगीतियां हुई थी। पहली संगीति हुई थी 483 बीसी में राजगीर में, जिस समय राजा थे अजातशत्रु। दूसरी संगीति हुई थी 383 बीसी में वैशाली में, जिस समय राजा थे कालाशोक। तीसरी संगीति हुई थी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में, एट दैट टाइम किंग वाज अशोका। चौथी संगीति हुई थी 98 एडी और फर्स्ट सेंचुरी एडी में कश्मीर के कुंडलवन में, एट दैट टाइम द किंग वाज कनिष्का। फर्स्ट समिट वाज प्रेसिडेड बाय महाकश्यप, सेकंड वाज सवाकामी, थर्ड मोगलीपुत्तिस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ समिट वाज वसुमित्रा एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज अशोक घोष। अब इसका आउटकम क्या क्या हुआ था? आउटकम में हम देखते हैं फर्स्ट संगीति में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट में का आउटकम था आउटकम, इस समय जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उनका रिसाइटेशन हुआ था। फर्स्ट जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, गौतम बुद्ध के जो उन्होंने जो भी उपदेश दिया था उस समय कोई रिटेन नहीं हुआ था, वो बस बोलते थे और उनके डिसिपल जो उनके शिष्य थे वो सुनते थे, याद रखते थे। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, जिन्होंने भगवान के दिए हुए उपदेशों को याद किया और उन उपदेशों को बोलते गए और जो बोल करके संकलन हुआ वो संकलन हुआ सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में। और हम पहले इस बात की चर्चा कर चुके, गौतम बुद्ध ने अपना उद्देश्य पाली भाषा में दिया था, जो उस समय जन सामान्य की भाषा थी। जो सुत्त पिटक की रचना पाली भाषा में हुई है और यह 5 भागों में विभक्त है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और एक निकाय याद नहीं है। ये खुद्दक निकाय 5 भागों में विभक्त था और इसी खुद्दक निकाय में धम्मपद पढ़ना है, धम्मपद है और जातक है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 547 भगवान बुद्ध से संबंधित पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जातक में। और धम्मपद को गौतम बुद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। दिस इज द गीता ऑफ बौद्ध रिलीजन। संयुक्त निकाय, इस तरह से 5 निकाय में डिवाइडेड है सुत्त पिटक, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है, जिसमें से थेरी गाथा, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, धम्मपद और जातक।
धम्मपद जिसे बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है, जातक जो जिसमें बुद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध से के पुराने जीवन से के संबंधित 547 गाथाएं उसमें दी गई, 547 कविताएं हैं उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित, इसलिए जातक और धम्मपद के विषय में एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इसमें से और कुछ नहीं, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि दीघनिका, मध्यमनिका, मूर्धनिका, खुद्धनिका, सुदीर्घनिका, इसका नाम याद रखना है। आनंद ने सुख पिटक को डिसाइड किया था और फर्स्ट संगीति में ही उपाली जो दूसरे शिष्य थे, जिनका नाम था उपाली, उन्होंने विनय पिटक क्या था कि बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी संघ में जो नियम बनाए गए थे कि संघ कैसे चलेगा, उसमें क्योंकि स्त्रियों का भी प्रवेश हो चुका था, समाज के विभिन्न तबके के लोग थे, तो उन लोग कैसे संघ को चलाएंगे, उससे संबंधित जो नियम बनाया गया था वो उसको विनय पिटक में संकलित किया गया था। और इसी विनय पिटक में है पातिमुख। सेकेंड समिट में, मतलब दूसरे संगीति में जो हुआ था सभा में, दूसरे संगीति में के समय तक आते आते विवाद थोड़ा बढ़ना शुरू हो चुका था। पूर्वी भिक्षुओं और पश्चिमी भिक्षुओं के बीच विवाद बढ़ना शुरू हो चुका था और उस समय स्थविर और महासंघिक नामक दो सेक्ट में विभाजित हो चुका था। दूसरी संगीति में स्थविर एवं महासंघिक नामक दो सेक्ट में विभाजित हो चुका था, लेकिन विभाजन उतना हार्श नहीं था, इसलिए उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ। थर्ड सेंचुरी में थर्ड जो समिट हुई थी, तीसरी संगीति हुई थी अशोक के समय, उस समय अभिधम पिटक और यह अभिधम पिटक था फिलॉसफी ऑफ बौद्ध रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ बौद्ध रिलीजन और बौद्ध रिलीजन, और साथ में या मेटाफिजिक्स हम कह सकते हैं, इसमें मेटाफिजिकल जो पॉइंट था उसका डिस्कस किया गया था अभिधम पिटक में। साथ में एक काम और हुआ था थर्ड सेंचुरी बीसी में, थर्ड समिट में, कि सम्राट अशोक ने विभिन्न देशों में धर्म के प्रचार के लिए अपने लोगों को भेजा था। यहाँ से धर्म के प्रचार की शुरुआत, माने भारत से बाहर भी धर्म के प्रचार की शुरुआत हो गई थी थर्ड सेंचुरी में। फोर्थ समिट हुई थी जो कनिष्क के समय, कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा समर्थक था, उस समय हुआ था। उस समय तक आते आते बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में विभक्त हो गया था, जिसमें एक का नाम था हीनयान, दूसरे का नाम है महायान। इस तरह से हम संगीति को देख लिए। संगीति के बाद थोड़ा कुछ और हीनयान महायान के विषय में जानते हैं। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान महायान। हीनयान मतलब कि हीन का मतलब है छोटा यान, छोटा, इसमें गौतम बुद्ध को ही एक महापुरुष के रूप में मान्यता दी गई थी गौतम, और यहाँ गौतम बुद्ध ये महापुरुष थे, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया। इसके अलावा महायान धर्म में आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। आइडल वर्शिप, यह एक कंफ्यूजन है कि प्रथम मूर्ति जो बनी थी भगवान बुद्ध की, इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन यह कंफ्यूजन है कि प्रथम मूर्ति गंधार कला में बनी थी या मथुरा कला में बनी थी। गंधार कला या मथुरा कला,
इस बात को लेकर विद्वानों के बीच कंफ्यूजन है। एग्जाम में कभी कभी इस तरह के कंफ्यूजन क्वेश्चन यदा कदा पूछ दिए जाते हैं कि किस में बनी थी। तो यह गौतम बुद्ध से संबंधित जो फैक्ट्स है उस फैक्ट्स की हमने चर्चा की। जो आज हमने गौतम बुद्ध से संबंधित लाइफ, फर्स्ट लाइफ, before life I discussed about the causes of origin, second life, third teachings of Gautam Buddha, fourth संगीतियां, सम्मित और संगीतियां। इन 4 विषयों के विषय में हमने चर्चा की। अब इसमें जो चीज कुछ और चीजें बच रही है वो है डिक्लाइन ऑफ बौद्ध रिलीजन, decline of both religion first, second impact of both religion, third comparison between Jain and Baudd, और साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे जिस क्वेश्चन को आज इस फैक्ट्स में हमें नहीं डिस्कस कर पा रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा एक चीज और इसमें छूट गया है जो मैं यहाँ डिस्कस यहीं पर कर देता हूँ। बौद्ध धर्म के टेक्स्ट, बौद्ध धर्म के टेक्स्ट मुख्य से 3 टेक्स्ट की हमने बात की अभी। फर्स्ट है सुत्त पिटक, सेकेंड विनय पिटक, थर्ड अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। इसके बाद है पिटिकेतर साहित्य। पिटिकेतर साहित्य, पिटिकेतर साहित्य ऐसे साहित्य को कहते हैं जो पिटक से अलग हो, जिसमें है मिलिंद पद्मों, मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पद्मों कहा जाता है। मिलिंद प्रश्न में भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद मीनांडर के बीच जो प्रश्न है उस प्रश्न का संकलन है, इसको मिलिंद प्रश्न कहते हैं। कभी कभी परीक्षा पूछता है मिलिंद प्रश्न के लेखक कौन है। मिलिंद प्रश्न के लेखक नागसेन नहीं है, नागसेन और मिलिंद के बीच वार्तालाप का यह संकलन है। सेकेंड है अशुघोष बुद्ध चरित्र, श्रीलंका में लिखे गए कुछ किताब है जिसमें दीपवंश, महावंश, ऐसी कुछ रचना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे बौद्ध धर्म के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना या कौन सी किताब का संबंध बुद्ध धर्म से नहीं है। मिलिंद प्रश्न, बुद्धचरित्र, दीपवंश, महावंश सभी के सभी पाली में लिखे गए हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के हमने एक संक्षिप्त बात यहाँ की। And in next video, I will discuss the rest matter or rest facts in the next video. Okay, thank you.